Welcome, Revant. I will dispense with G because I know how much younger he is than me. Uh, I can usually start these days with current generation of political leaders, corporate leaders, uh, film stars, usually by saying, I knew your dad, or I knew your mom. Uh, Not in his case. He's self-made, and he's been through the political school of hard knocks. There is no school in any profession that is tougher, more demanding, more unforgiving than the school of politics. And I also believe that everybody likes to say nasty things about politicians, and I see TV channels saying neta, 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 and they say it pejoratively. But it's very tough to be a neta. And I have always believed, Mr. Padmanabhaya is here, a lifelong civil servant and distinguished civil servant. He will tell you that nobody works harder, not even civil servants. They work very hard, but nobody works harder in India than our politicians. And then after all that, you lose elections, then you have to work even harder to come back. So it's the most performance oriented. It's as performance linked as sports, because if you fail, then you are out, and then you have to win your way back. So Revant, at age 56 as we talk now, has already been, looks like he's been chief minister for a long time and is making news and the waves all over the country. Revant, welcome to Off the Cuff. Thank we you. are very happy to be with you, and I think it's our first time in Hyderabad after 6 or 7 years. 5 years we lost after COVID and things didn't get started. So thank you, Quorum, for being our partners, and thank you, Kotak, for being our partners. And thank you all the guests here from Quorum, from Kotak, our guests, all of you are wonderful people. And how this is going to work is, this is becoming a slightly long preamble because it's the first in a very long time. How this is going to work is, this will not be like me interviewing him for an hour and they're saying you have 10 minutes for questions, not like that. I will start the conversation. All of us are part of this conversation. So I will start the conversation, and then please raise your hand whenever you want to ask a question or you want to intervene. Just raise your hand. Somebody will bring the microphone to you. Just mention your name so that we have it for our recording, and everybody knows who you are, and then we can carry on. So with this, I'll get started. Revant, thank you very much. Now tell me, life in power. This is also your first experience of real power. Is it as good as it might have looked when you were outside it, or is it tougher than you had imagined? If you feel this is power, definitely you will get pleasure. You feel this is responsibility, you feel more प्रेशर, क्योंकि ये जिम्मेदारी ऐसे जिम्मेदारी है. मैं किसी से, कोई सीनियर जन से जिस दिन बात हो रहे थे, वो कह रहा था इस देश में पीएम, सीएम, डीएम, ये 3 लोगों का ताकत है, जो चाहे वो कर सकता है. तो वो ताकत आप कैसे, कौन सी तरीक़ा से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो आदमी के ऊपर डिपेंड होगा. तो जिस दिन मैं जिम्मेदारी लिए, मैं जिम्मेदारी समझ रहा हूँ, ये हुकूम चलाने वाले नहीं समझ रहा हूँ. तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है. मैं अपोजिशन में था, जिस दिन अखबार पढ़ के मुझे समझ में आया किसी को गाली देना है तो जाके गाली दे सकता हूँ. कहीं कुछ इंसिडेंट और एक्सीडेंट हो गए, मैं जाके देखना चाहता हूँ, मैं जा सकता हूँ. कोई किसी ने आपको बुलाएगा नहीं, आपको उतना जिम्मेदारी भी नहीं है. मगर आज के तारीख में ऐसा नहीं है. 6 बजे उठकर आप अखबार देखें तो जो भी कहीं पर कोने कोने पे छोटे गांव में भी कुछ भी मुद्दा हो गया तो हम तुरंत वो डीएम को कनेक्ट करना है, नहीं तो चीफ सेक्रेटरी, नहीं तो सिस्टम में कौन है, वो सबसे बात करना पड़ता है. तो उनको डायरेक्शन भी देना है. बात करने से मामला समझने से कोई बात नहीं है. उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी तरीक़ा से काम करना है. तो जिसको आप जिम्मेदारी दे रहे हैं उनसे भी आपके सोच बेटर रहना है. लेकिन वही पेपर पढ़ के आपको अपोजिशन वाला आपको गाली देता है, वो मेरा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सक्सेस नहीं हो तो मुझे कोई भी गाली नहीं देगा.
कोई विपक्ष के नेता लोग मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं तो मुझे कुछ है, कुछ नहीं है तो कोई कुछ नहीं, स्टेटस को में रह जाएंगे। स्टेटस को में रहने के लिए मुख्यमंत्री क्यों बनना शेखर जी? मैं स्टेटस को वाला नहीं हूं। तो हर दिन मैं पहले कौन कौन गाली दिया, कौन सी तरीका से गाली दिया, वो सब सारे पढ़ता हूं मैं। मेरे तो एक क्या काम करने के लिए वो एक तो सबसे ज्यादा गाली कौन देता है, बीजेपी वाले या बीआरएस वाले? बीआरएस में एक परिवार, सब बीआरएस वाले नहीं है, खाली केसीआर परिवार ने ही मुझे गाली देता। और तेलंगाना में 4 करोड़ जनता कोई भी मुझे गाली देते नहीं, मुझे कुछ कहता ही नहीं। अरे ये तो बंदा अच्छा कर रहा है। बड़े लोग बोलता है बंदा अरे सही काम कर रहा है, छोटे लोग बोलते हैं अरे भैया अच्छा काम कर रहा है। एक परिवार को मेरे से दिक्कत है। परिवार में बाप बेटे को, दामाद को भी नहीं है, बेटे को भी इतना तकलीफ नहीं है, बाप बेटे की इतना तकलीफ हो रहा है। कभी कभी मैं ऐसा डर लगता है मेरे को, कभी ये सुसाइड कमिट की है, कुछ हो सकता है, क्योंकि ये कुर्सी में एक किसान का लड़का बैठना उन लोगों को पसंद नहीं। तो इसीलिए मुझे इतना गाली देने के लिए नया नया रास्ता ढूंढ रहा है। तो मेरे को अच्छा लगता है, मेरा दुश्मन इतना रोली है तो उससे ज्यादा क्या है मुझे। I said you are from the school of hard knocks. So, as he said himself, I am quoting you to yourself, that his schooling was with the BJP, ABVP. Not BJP. BJP, ABVP. विद्यार्थी परिषद समथिंग डिफरेंट फ्रॉम बीजेपी। बीजेपी से कोई विद्यार्थी परिषद को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बहुत बार विद्यार्थी परिषद में जिस दिन काम किए तो हम लोग डिफर होते थे। चुनाव में हम बीजेपी के खिलाफ भी काम किए जब मैं विद्यार्थी परिषद से रिप्रेजेंट किया। आज के तारीख में आरएसएस, बीजेपी, विद्यार्थी परिषद ऑर्गेनाइजेशन में कितना फर्क है, कौन क्या काम करेगा, ज्यादा चर्चा ही नहीं चल रहा है। तो मैं विद्यार्थी परिषद को, नॉट बीजेपी अफिलिएशन। वो आपकी बात आई डोंट थिंक बीजेपी वाले मानेंगे, बट नेवरदलेस स्कूलिंग आपकी एबीवीपी में, कॉलेज आपका टीडीपी में आपने बोला, और अभी जॉब आपकी लगी कांग्रेस पार्टी में। तो आपने कहां पर क्या सीखा और कहां काम आया, क्या सीखा और क्या छोड़ा? नहीं, विद्यार्थी परिषद ऑर्गेनाइजेशन जब आप काम करते हैं, कमिटमेंट देश के बारे में, काम के बारे में, स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल आपका एक स्ट्रेंथ मिल जाएंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी में कोई भी, ये लेफ्ट में काम करो, राइट में काम करो, मगर मेरा सुझाव ऐसे है, जो भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। तब आपको ऑर्गेनाइजेशन स्किल भी मिल जाएंगे, समस्या को समझने के लिए आपको एक रास्ता दिखेगा, और लीडरशिप क्वालिटी भी आपको मिलने वाले। तो विद्यार्थी परिषद में हम लोग सिस्टम को कैसे समझना है, नेशनल इंटरेस्ट को कैसे आगे लेकर जाना है, बाकी साथियों को कैसे साथ में रख के चलाना है। विद्यार्थी परिषद में हम लोग ये सीख लिए। नायडू का ने आप देखा है बहुत सारे चीफ, मेरे ख्याल से 70 चीफ मिनिस्टर्स को आप देखे शायद, 35-40 ईयर्स योर एक्सपीरियंस, आउट ऑफ 35-40 ईयर्स योर एक्सपीरियंस, चंद्रबाबू नायडू, SM कृष्णा इज एन प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर्स, मे भी जयललिता, चंद्रशेखर राव, अब क्या है आपको पता है। तो ये प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर जो था चंद्रबाबू नायडू। तो अब नेता बने तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अलग है, नेता अलग है, लीडर अलग है। लीडर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोई भी बन सकता है, किस्मत से भी बन सकता है, बाय फ्लूक भी ऐसे बन सकता है, विरासत में भी बन सकता है। कभी कभी परिवार में कोई डेथ हो गए तो उनके बेटे को, बेटी को, बीवी को कुछ ना कुछ बनाने के लिए अपना सिस्टम परमिट करते हैं। तो विरासत में भी आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, मगर लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनना है तो आपको कुछ क्वालिटी होना, लीडरशिप होना, आप लीड करना है। तो लीड फॉर डेवलपमेंट, लीड फॉर वेलफेयर, लीड फॉर फिलॉसफी एंड पॉलिसीज। सो चंद्रबाबू नायडू से प्रोग्रेसिव थिंकिंग कैसे करना, सिस्टम चलाने के लिए कौन सी तरीका से, IAS बाबू लोग कैसे काम करते हैं, बाबू लोग आपको पता है, उन लोगों को संभालना कैसे है, समझाना कैसे, आगे अगर वो कुछ भी फाइल लाके सामने रखे तो बिटवीन द लाइंस भी क्या है, कैसे पढ़ना। तो ये सब सारे नायडू जी से सीखा। अभी जहां पर काम कर रहा हूं, जनता के लिए क्या काम करना है, राहुल गांधी जी से। कांग्रेस पार्टी में ज्यादा नेता लोगों से मेरा कोई मतलब इतना
क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं है। राहुल गांधी जी से आई हैव वेरी गुड इक्वेशन एंड रिलेशन विद हिम। ही इज हैविंग अ कमिटमेंट टुवर्ड्स डाउन ट्रॉड एससी एसटी ओबीसी, जिसको सरकार का मदद जरूरी है। सरकार कौन सी काम करना है, कौन सी पॉलिसी लागू करना है, सरकार कौन सी तरीका से वेलफेयर एंड डेवलपमेंट को बैलेंस करना है, तो उनका कमिटमेंट देखकर उनके साथ काम करने के लिए मैं तय कर लिए। आज उनके जो माइंडसेट है, इम्प्लीमेंटेशन अलग है। इम्प्लीमेंटेशन दैट इज डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। आपको सेम वही काम दिए तो आप एक तरीके से करते होगा, मैं मुझे मिले तो मैं दूसरे तरीका से। तो राहुल गांधी जी का जो कमिटमेंट है एससी एसटी ओबीसी एंड वुमेन, ये सब सारे कमिटमेंट से आज जो सरकार चलाने के लिए कोशिश कर रहे, तो ये इज इंस्पिरेशन फॉर दैट। क्योंकि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी का बेटा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर गांव गांव घूमने का कोई जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री बनना है तो, मंत्री बनना है तो 2004 में बनता था, प्रधानमंत्री बनना है तो 2009 में बनता था। मगर 25 साल 4 से लेकर 29 तक कहीं उन्होंने मंत्री या प्रधानमंत्री या कुछ पोजीशन नहीं लिए। विपक्ष में बैठने के लिए वो राजी हो गए। विपक्ष में बैठकर वो जनता के लिए सोचना, जनता के लिए काम करना, उनको कोई ज़रूरत नहीं था इतना दूर पदयात्रा करने के लिए। मणिपुर में इतना बड़ा इंसिडेंट्स हो गए तो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर किसी ने नहीं गया। वो खुद जाकर वहां पर लोगों से मिलके वो लोगों को एक भरोसा दिए। मणिपुर में सरकार का जिम्मेदारी वो भरोसा देने का, तो सरकार फेल हो गए, प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर फेल हो गए। मणिपुर में लोग, hundreds of people they have killed just like that, thousands of AK-47s। मणिपुर में लोग ऐसे खिलौने जैसा खेल रहे थे। तब सरकार कहाँ थे? हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता है, इतना पावरफुल, लैक ऑफ आर्मी पीपल आर देयर, बट टेररिस्ट और टेररिस्ट माइंडसेट पीपल आर दे आर यूजिंग AK-47s, AK-57। इतने सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन सड़क पे, बीच सड़क पे गोली मार के लोगों को उड़ा दे रहा है। तब कौन जाना है? केंद्र सरकार ने क्यों नहीं गए? मोदी जी और अमित शाह जी ने क्यों नहीं गए वहां पर? तब राहुल गांधी जी ने गया, भरोसा देने के लिए कोशिश की, जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए राहुल गांधी कोशिश की। तो उनसे वही इंस्पिरेशन है हमारे लिए। लोग बोलेंगे भाई राहुल गांधी फेल हो गए, पास का मतलब क्या है? मंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना पास है क्या? राहुल गांधी फेल नहीं हुआ, पास हो गए, क्योंकि वो विपक्ष में बैठकर बिना मंत्री बिना प्रधानमंत्री काम करने के लिए कोशिश कर रहा है, आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहा है। तो इसीलिए मैं भी एक लाइन लेकर, ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी निभाना है। ये जिम्मेदारी लोगों के लिए कुछ फायदा होना, वेलफेयर में, डेवलपमेंट में, पॉलिसीज में हैव हिंदुस्तान में पूरा SC सब कैटेगराइजेशन किसी ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देने के बाद विद इन 6 months आई हैव डन इन मेटिकुलसली। OBC 100 years कोई गिना ही नहीं, गिनती शुरू नहीं की है, कोई किसी ने हिम्मत भी नहीं की है। मंडल कमीशन जिस दिन आया था, कमंडल शुरू कर दे के मंडल कमीशन को खत्म कर दिए, उसके बाद कोई हिम्मत नहीं की। मगर इस देश की जनता से राहुल जी वादा किया, मैं काम करके दिखाया 1 साल में। आज सवाल इसीलिए मैं, भारत जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी का, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूं। इसीलिए जनगणना में, जाति गणना, अभी केंद्र सरकार ने आज निर्णय लिए कि भाई 2026 में हम लोग जनगणना में जाति गणना करने वाले। तो ये पूरा सिस्टम, रिजर्वेशन, वेलफेयर, डेवलपमेंट, ये करने के लिए एक डेटा होना, तो ये सब सारे राहुल गांधी जी से हमने सीखा है। राहुल गांधी जी के साथ जो काम करने, ऐसे कुछ मुद्दों पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अलग अलग वर्टिकल में, जब स्कूल में था स्कूल के हिसाब से पढ़ ले, जब कॉलेज में कॉलेज के हिसाब से कर रहे, जब जिम्मेदारी निभा रहे जिम्मेदारी के हिसाब से हम काम करना शुरू किए। तो उसमें
आपकी जातीय जनगणना के बारे में आता हूं, क्योंकि वही आपका एक बड़ा इशू भी बन गया और राहुल गांधी उसको अपना नेशनल मॉडल भी बना रहे हैं. एक छोटा सा करेक्शन के अमित शाह शुरू में मणिपुर में जो हुआ बहुत खराब है, अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है. पद्मनाभ भैया जी हमारे यूनियन होम सेक्रेटरी रहे हैं, ही नोज द नॉर्थ ईस्ट वेरी वेल. तो बट द फैक्ट इज दैट अमित शाह हैड गॉन देयर अर्ली ऑन वो नहीं चुनाव में गया, कर्नाटका चुनाव में कैंपेनिंग में गए शेखर जी. आप जाके वेरीफाई करो. हम लोग राहुल गांधी जाने के बाद, हम लोग सब बोलने के बाद, उसके बाद गया. सो दिखाने के लिए. It's for me to give facts. When crisis started, he went there and spent 3 days. नो शेखर जी, आप डेट देखो, तारीख देखो. नहीं हाथी का दांत खाने का अलग है, दिखाने का अलग है. आपको मैं सो ऐसे ही अमित शाह जी जाने का दिखाने का दो अलग है. वो अलग बात है, लेकिन वो गए वो तुरंत नहीं गए. आप डेट्स वेरीफाई करो. मैं मुझे पता है, अथॉरिटी से मैं बोल रहा हूँ. आप वेरीफाई करो इंसिडेंट्स कब शुरू हो गए. सिंपल, आज तक भी कोई जवाब दिए क्या? नहीं वो अलग बात है. मोर देन 10,000 AK-47 राइफल्स आर देयर इन द ग्राउंड. आम आदमी के हाथ में हजारों में AK-47 राइफल्स हिंदुस्तान में कोई चला रहा है, तो सरकार क्या कर रहा है? Those questions we have been raising most of all from day one. तो आज तक मोदी जी या अमित शाह कुछ कह रहे ही नहीं उसके बारे में. मोर देन 10,000 AK-47 राइफल्स. कोई आम आदमी सड़क में गोली चला रहे, तो इस देश को कौन बचाएगा? कौन जिम्मेदारी लेना है? 56 इंच छाती का प्रधानमंत्री कहाँ थे? बीच सड़क पे औरत के ऊपर AK-47 लगा दे के, दो जातियों के बीच में, जो ट्राइबल्स के बीच में आप वो डिवीजन बहुत कंप्लीट है. दैट इज राइट. एंड पीपल आल्सो चूज कि मेरे को असम राइफल्स हो या मेरे को पैरामिलिट्री फोर्सेस दूसरी दो. वो चल रहा उधर. थिंग्स आर वेरी बैड. बट दैट सेड, नाउ योर कास्ट सेंसस, राहुल गांधी सेज दैट इज गोइंग टू बी हिज मॉडल फॉर द कंट्री. सो व्हाट विल यू डू विद दिस कास्ट सेंसस डेटा? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ? सो शेखर जी, दिस इज, राहुल जी कहते हैं कि एक्सरे, मैं कहता हूँ ये मेगा हेल्थ चेकअप. मेरे पाँव में दर्द है तो मुझे पता लगता है मैं यहाँ ही ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ. मेरे नी रिप्लेस करना है तो मैं नी रिप्लेस करता हूँ. मेरे और कहीं जगह में कुछ तकलीफ है, हार्ट का तकलीफ है, तो मैं ये करता हूँ. तो आजकल वेलफेयर अनडिजर्विंग पीपल को जिसको मिल रहा है, जो डिजर्विंग पीपल को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन, जिसको दूर दूर तक. मैं कुछ जातियों का रेड किए, उनके जाति में आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना. कुछ जातियों में आज तक आफ्टर 78 इयर्स ऑफ डेमोक्रेसी उनके कंप्लीट सेक्शन में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर नहीं बना. किसी को पता भी नहीं अभी तक. लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज द सेम. सो अनलेस यू एक्सपैंड द अपॉर्चुनिटी, otherwise you will be distributing the same thing. नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ. आप आदिलाबाद चलो, ट्राइबल एरिया में आदिवासी, आज तक हम लोग वहाँ रीच भी नहीं हुए. स्कूल एजुकेशन भी नहीं है, मेडिकल कैंप नहीं है, पर जाने के लिए रास्ता नहीं है. वो तो रिजर्वेशन ऑलरेडी है. नॉट ओनली रिजर्वेशन नहीं दिया, वो अलग बात है. रिजर्वेशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज दैट एजुकेशन इज डेवलपमेंट. आप वेलफेयर देने से, किसी को फाइन राइस देने से, किसी को और कुछ देने से वो कुछ डेवलप नहीं होने वाले. पहले उनको एजुकेट करो. सो मेंटली वो रिच होना है. सो बहुत सारे, मैं इस सर्वे में लैंडलॉर्ड से सब कुछ है. उन लोगों का नहीं एजुकेशन ही, वो बैकवर्ड ऐसे ही रह गए. सम ओबीसी सेक्शंस आर देयर, दे हैव वेरी गुड लैंड होल्डिंग, अच्छा बंगला है, सब कुछ है, मगर परिवार में देखे तो कोई भी स्कूल को जाने वाले नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं. If I may interrupt you, your caste census is not just about reservations. No. It is socio-economic, education, employment, political and caste survey. Caste is last. Social status, economic status, education status, employment status, political status, political reservation from panchayat member to parliament member. वो जाति में कोई पंचायत मेंबर कभी बना क्या? कोई सरपंच बना, कोई एमपीपी, कोई जिला परिषद मेंबर, कोई एमएलए, कोई एमपी, उनके मतलब वो जाति में तो पूरा हम लोग रीच कर रहे हैं. सो डिजर्विंग पीपल को रीच होने के लिए ये डेटा, आज तक डेटा नहीं है.
डेटा इज असेट, तो मैं असेट मेरा हाथ में है अभी, यही मेरा ताकत है. So are you hoping that at least other Congress government will start doing it? या डेफिनेटली इससे only- कंपल्सन. जब मोदी जी को कंपल्सन हो गया, बाकी लोगों का क्या बड़ी बात है. हाँ. जब मोदी जी हमको खुद ये जिम्मेदारी उठाने के लिए जब बयान दिए, आदेश भी दे चुके, तो आने वाले दिनों में दिस इज अ गेम चेंजर फॉर आवर कंट्री. आपको मैं थोड़ा सा I'll take you away from the state and this issue to a larger plane. Since yesterday, Donald Trump has been talking to India through his tweets or Truth Social posts. And among things he has said, one he has said, I'm putting tariff duties, जिसको हम customs बोलते हैं, tariffs on India. Then he said India is the biggest abuser. Then he says India has a dead economy. So how are you watching that? And I will also dovetail with that the question on the larger debate in Parliament over Op Sindoor. So what do you think? Does Mr. Modi now does he have more questions to answer, or has he been found wanting, or do you think he's been strengthened, weakened? थोड़ा उसका assessment दीजिए मुझे. वो ऑप सिंदूर के डिबेट से डोनाल्ड ट्रंप तक कनेक्ट करके. डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक ऐसा है डिसीज, अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर. वो डिसीज के वजह से हमेशा डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू गेट अटेंशन फ्रॉम एवरीवन. दिस इज वन टाइप ऑफ डिसीज. दैट इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन. पॉइंट नंबर 1, दुनिया में कुछ भी हो वो मेरे वजह से हुआ. ये अटेंशन सीकिंग डिजार्डर जिसको रहता है ना, वो शादी में गए तो शादी बहुत बड़ा अच्छा गए तो दुल्हन वो बनना चाहता है. मतलब अगर मैं दुल्हन बने तो कैसा रहता, वो खुद ना खुद सोचते रहता है. कहीं मोते पे डेथ में गए तो बहुत सारे 1 लाख भीड़ आ गए देखने के लिए. अरे भाई भी मैं लाश बन गए तो वो चाहता रहता था क्योंकि इतना सारे लोग आए. तो उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है. दिस इज कॉल्ड अटेंशन सीकिंग डिजार्डर. शादी में गए तो दुल्हन बनना चाहता है, डेथ पे गए तो लाश बनना चाहता है, कि लोग पूरा सबका अटेंशन हमारे ऊपर ही रहना है. तो ट्रंप ये ऐसे ही बातों में उन जब तक पहले वो टीवी में शो करते थे शायद, आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट ट्रंप. सो वहां से लेकर 2 बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गए, तो वो पॉपुलैरिटी कुछ अटेंशन सीकिंग से वो इधर तक आ गए. मगर यहाँ पर छोड़ देना. आप जीतने के लिए एक रास्ता है, जीतने के बाद संभालने के लिए दूसरे रास्ता ढूंढना है, मगर वो दूसरे रास्ता नहीं ढूंढ रहा है. तो इसीलिए इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर जो भी हुआ, पहले प्रधानमंत्री को मदद पे तेलंगाना में मैं खुद रैली निकाला. मेरा रैली में असदुद्दीन ओवैसी को भी साथ में लेकर हम ये कह दिए एक बड़ा रैली निकालो, लोगों को पूरा जमा कर दे के. पहलगांव में जो टेररिस्ट एक्ट था उसको हम कंडेम किए, बड़ा रैली निकाला और मोदी जी को साफ साफ कह दिए भाई आप पाकिस्तान से लड़ो. 71 इंदिरा जी ने जो पाकिस्तान से लड़कर पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए, एक पाकिस्तान दूसरा बांग्लादेश. इस बार आप लड़ो, पाकिस्तान को 2 टुकड़े करो, बेलूचिस्तान को अलग कर दो. आप पीओके के बारे में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर आज तक बार बार ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी ने पीओके दे दिया, हम वापस लाएंगे. मोदी जी हम आपके साथ है, आप पीओके वापस लाओ. मैं बड़ा रैली निकाल के, मैं नहीं मेरे साथ में असदुद्दीन ओवैसी का भी मदद मैं खुद कलेक्ट कर दे के मोदी जी को दे दिए भाई आप लड़ो. ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए. जब विपक्ष नेता लोगों को सबको बिठाया, आल पार्टी को सबसे भाषण कर लिए, सबसे कंसेंसस बिल्ड किए. जब जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर रोक दिए, बिना पूछे, बिना कंसल्टेशन, बिना कंसेंस, कुछ नहीं कहा. मोदी जी ने पहले नहीं कहा, ट्रंप ने कहा मैं मोदी जी को और पाकिस्तान को आदेश दे दिए, अभी खत्म हो रहा है. 2 घंटा पहले ट्रंप ने किया. सेम 1971 वार में इंदिरा जी अमेरिका में थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, थ्रेटेंड श्रीमती इंदिरा गांधी जी. तो तभी भी इंदिरा जी क्या मुंह तोड़ जवाब दिया आपको पता है.
It is an open secret. Same time, America is involved in this war, India-Pakistan war. हमारी इंदिरा जी ने कब पीछे नहीं हटी, बांग्लादेश को अलग करके दिखाए, पाकिस्तान को वार में हरा के दिखाए. ऑपरेशन सिंदूर जो वार शुरू किए मोदी जी ने, वार शुरू किए सो वाले वापस ले लिए, तो किसका हार है शेखर जी, आप बोलो. तो आप पाकिस्तान अगर वार शुरू किए तो, अगर वो रोक दिए तो बात अलग है. आपने वार शुरू किए, आपने वापस चला गए, आपने जीत गए बोल के बोल रहे. यहां पर जीत हार की कहां बात आ गई. ट्रंप ने कह दिया आप बंद करो, अब बंद कर दिए. अभी नेता कौन है दुनिया का? ट्रंप नेता है. ट्रंप के नीचे मोदी जी काम कर रहे हैं. 140 करोड़ जनता ट्रंप के नीचे काम करने के लिए मोदी जी को तोड़ी वोट दिए. हम लोग थोड़ी मदद किए. अगर ये ट्रंप को सुनना है तो हमको तो ट्रंप को बोलते थे भाई अभी ऑपरेशन सिंदूर शुरू करो, ऑपरेशन सिंदूर बंद करो. अभी इससे क्यों भैया दरखास्त यहां से वहां तक क्यों जाने. तो इसमें मोदी जी 200% फेल हो गए, क्योंकि ट्रंप ने जो कह रहा है वो हिसाब से देश को चलाने के लिए कोशिश कर रहा है. इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल रिलेशंस, किसी कहने के वजह से आप काम किए तो देश के लिए अच्छा नहीं. So if you were to handle Trump, if you were in Mr. Modi's position, how will you handle Trump? ट्रंप से कोई लेना देना ही नहीं है. उनको उनके तरफ क्यों पलट के देखना. जब आपको पसंद है उनके तरफ ही मत देखो. जो मेरा नहीं लेकिन भारत का जो प्रधानमंत्री है उसको तो अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करनी पड़ेगी ना, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकता. तो आप इग्नोर नहीं कर सकता. तो आप होंगे तो आप उससे कैसे सिलिकॉन वाले अपने हाथ में. हाँ, जूस कैसे हैंडल कर रहे हैं यूएस को. यूएस को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिरा है ना, जूस कैसे हैंडल किए यूएस को. Why can't Telugu people, why can't Indian people can handle Trump or American government? हम बहुत ताकत है आज के दिन में. अमेरिका अगर हम लोग पूरा हड़ताल में बैठे तो अमेरिका चलेगा कैसा. पूरा हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं अमेरिका में, हम लोग सब काम हड़ताल में चला गए समझो. ट्रंप कहाँ जाएंगे, खुद भाग कर आ जाएंगे. लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, हाउ कम इंडियन डायस्पोरा हैज नॉट स्पोकन इन इंडियाज इंटरेस्ट. वो सब चुप बैठे हुए क्यों? क्योंकि यहां से कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना. लीडर का काम है लीड करने का. सो हिंदुस्तान ने कोई लीड ही नहीं किया. अरे भाई हम ये बोलना ये नहीं बोलना, तो उनको रास्ता ही नहीं दिखाया. हम लोग हमारा सोचदार क्या है, नहीं तो हम व्हाट इज आवर रोड मैप, हम कुछ बोले ही नहीं. तो हम कुछ बोले तो वो लोग जमा हो जाएंगे. बार बार मोदी जी यूएस जाते रहते हैं ना, वहां पर मेला बनाते हैं ना. अभी जाके मेला बना के मोदी जी, ट्रंप ने जो कहा वो गलत है. लोकसभा में इतना 2 दिन चर्चा हुई, 16 आवर्स मोर देन 18 आवर्स चर्चा हुई. ट्रंप के खिलाफ कुछ ट्रंप इज लायर बोल के भी नहीं बोल सका. ट्रंप झूठ बोल रहे बोल के भी नहीं बोल सके. क्यों 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 का जवाब मोदी जी देना. Question, just get the microphone and introduce yourself. Sir, I am TV Sudhakar, retired general manager from Reserve Bank of India. Where, can I see you? Okay. Yeah, here. Okay. Yeah. Okay, all right. So, wanted to. Hello. Yes, yes. Wanted to know from the Honorable Chief Minister, what are your plans for the development of the state and what are the investment opportunities which you expect from the people of Telangana? మనము ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళాలి, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఏ ఏరియాల్లో మీరు డెవలప్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు? तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए हम लोग विजन डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना रहे. तेलंगाना राइजिंग 2047 बाय December 9, 2025 तक वी आर गोइंग टू अनाउंस आवर विजन डॉक्यूमेंट. इट इज अंडर कंसिडरेशन. एजुकेशन, फार्मा, आईटी, अदर सेक्टर्स जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि टिल नाउ वी हैव सर्विस सेक्टर, वी आर डूइंग मच बेटर. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो वो पॉलिसी हम दिसंबर तक लागू हो जाएंगे. अभी तो टूरिज्म पॉलिसी बन गए, एनर्जी पॉलिसी बन गए, हेल्थ पॉलिसी बन गए, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आल्सो, एमएसएमई का भी पॉलिसी बन गए. यू गो थ्रू दैट पॉलिसीज. इफ यू आर गोइंग टू फिट जहाँ पर आप फिट है. इवन सीएमओ में हम लोग इन्वेस्टमेंट चेजिंग सेल बनाए, हेडेड बाय
स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सीनियर IAS ऑफिसर, आई हैव गिवन ए एंटायर स्ट्रक्चर. कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट अगर तेलंगाना में अगर करना है तो सीधा वहाँ पहुँच सकता है. आपका जो परमिशन है, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर परमिशन तक सिंगल विंडो में दे देंगे कि हम पूरा सिस्टम लागू किए. अभी आप यू कैन रीच माई CM ऑफिस, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, इन्वेस्टमेंट चेजिंग सेल एंड अदर MOU जो भी है उसको एक्सपीडाइट करने के लिए भी एक पूरा सिस्टम लागू किए. बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग फॉरवर्ड एंड एनीवे 20 Telangana Rising 2047 December 9th 2025 we are going to release our policy document. Tony Blair also one of the advisor in my action plan. Abhishek Banerjee, Nobel Prize winner, also one of the member in this policy. Santanu Narayan is also one of the policy member. Mohan Guruswamy, who was advisor to Manmohan Singh, he is also financial expert, is one of the advisor. So all these are important personalities are there. तो वो पॉलिसी हम लोग आने वाले दिसंबर तक हम दे देंगे. बेस्ड ऑन दैट whoever interested to invest in Telangana, we are there to support incentives, allocation, permission, whatever it is. Government is going to look after all these sectors. So somebody in the audience who may not ask the question but told me to ask you, who said that in the previous government KCR, if you got to the chief minister, one person, everything got done. If you wanted to do it, everything got done. In the Congress, there are many centers of power and files go into orbit. So decisions take a long time. What is the answer? It is collective responsibility. जिम्मेदारी सब लोग बांट लिए तो जिसका काम वो परफेक्ट कर सकता है. सब सारे माइक को उठाना है. लेकिन आपका डिसीजन मेकिंग स्लो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अभी मेरे से कोई ट्रांजैक्शन मतलब लेवल पे आप देखो, किसी को अगर कोई CMO में आ गया, उनका कोई किसी का पेंडिंग नहीं. हम पॉलिसी बना रहे, पिक एंड चूज नहीं कर रहा है. तेलुगु में बोलना है तो KCR का जो सरकार था, नचते नजराना नचकपोते जुर्माना. आपको पसंद आए तो नजराना मिलेगा, उनको पसंद नहीं है तो आपको जुर्माना लगाएगा. मेरा नजराना जुर्माना में मैं सरकार नहीं चलाना चाहता हूँ. मैं पॉलिसीज के हिसाब से सरकार चलाना चाहता हूँ. इसीलिए मैं पॉलिसी बना दी है. वो पॉलिसी फ्रेमवर्क में कौन कहाँ आ सकता है. 10 crores इन्वेस्टमेंट, 100 crores इन्वेस्टमेंट, 500,000 crores इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स. दैट मे बी फार्मा, दैट मे बी IT, दैट मे बी टूरिज्म, दैट मे बी सम अदर सेक्टर. हैव डन माई पॉलिसीज. Based on that policies, my government is going to function. My officers are going to function based on that. My ministers will take a call on that. So KCR did not have a high command, you have one. How much autonomy do you have? 100% I am autonomous. कोई भी मैं जब चाहे तो मैं दिल का राजा हूँ. मेरे की किसी ने कुछ खींच नहीं सकता है, ज़बरदस्ती से काम नहीं करवा सकता है. मैं तरीका से सिस्टम को डरता हूँ, मैं आदमियों को नहीं डरता हूँ. मैं सिस्टम को डर के, मैं मिडिल क्लास मेंटालिटी मेरा, तो मैं कुछ मुख्यमंत्री बन गया मगर मेरा मिडिल क्लास मेंटालिटी से मैं बाहर नहीं आ सक रहा हूँ. सोसाइटी के लिए मैं डर रहा हूँ. मिडिल क्लास मेंटालिटी इसलिए बड़ा भाई बोला ना मोदी. वो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ बिग ब्रदर फॉर एवरी चीफ मिनिस्टर. आई हैव टू रेस्पेक्ट माई सिस्टम. नरेंद्र मोदी इज नॉट इंडिविजुअल, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. आई एम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना. तो इतने सारे चीफ मिनिस्टर्स को सेंट्रल सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, कॉन्फ्रेंस लिस्ट जो भी है, ही हैज टू टेक सर्टेन इश्यूज. एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, पोजीशंस वाइज इज होल्डिंग मच बेटर. तो किसी को व्हाट इज इंडियन सिस्टम, बड़े लोगों को इज्जत देना अपना सिस्टम है. वो बड़ा है पोजीशन वाइज, एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज. तो मैं बड़े भाई कहा, इसमें कोई दूसरा सोचने का भी कोई जरूरी नहीं. आज भी मैं ऑफिशियली शेखर जी आपके सामने कह रहा हूं, यस, नरेंद्र मोदी इज ए बिग ब्रदर फॉर दिस कंट्री. ऑल चीफ मिनिस्टर हैज टू से दिस. इसमें कोई छुपाने का नहीं है. जब मेरा स्टेट इंटरेस्ट है, स्टेट इंटरेस्ट में मुझे नहीं मिला, मेरा हक नहीं मिला, मैं लड़ूंगा, छीन लूंगा. मैं हक के लिए कोशिश करता हूं. मैं इज्जत देने में मैं पीछे नहीं हटता हूं. इतना ही फर्क है. ये पॉलिटिकल लोग बोलते हैं कि भाई बड़ा भाई कह दिया, बड़ा भाई छोटा भाई. क्या हो छोटा भाई, क्या फर्क है. मोदी जी मेरा छोटा भाई समझे तो अच्छा ही है मेरे लिए, राज्य के लिए भी अच्छा है. गुड. एंड thank you, sir. First of all, the distance from the corporate world to the government has
kind of become closer by your onset here in the high-tech city. My name is Anand Krishna. I'm a chartered accountant and I work with a public accounting firm in Hyderabad. When I have seen for the last 20-25 years of the governance, we have invested heavily on the engineering students. And all the engineering students have either fled to America to rule the Silicon Valley, how you have said, or have set up startups in the Bangalore, which happens to be your counterpart. Why do you think that, in spite of the governance here, we are not able to spurt the entrepreneurship or the innovation or the startup ecosystem as compared to the other counterparts? And extension to it is, a lot of the companies who are setting up shop in Hyderabad are all the back offices, global capability centers. Why are we not in the front end? Like as a Hyderabadi, I feel sad that we are the service centers and not the product innovators. And a question, if I may ask, sir, how do you think that we working in the corporate world can come into policy making? Thank you, Yeah, sir. definitely. That is why I've. Anand, you are TPSJ. Yes, sir. Yes. So let me mention, this is a little bit of favoritism. Anand is also a graduate of the Print School of Journalism. And we are very happy that many professionals are joining this school. It's a 16-week course. We have doctors, we have CAs, we have scientists, we have bankers, because they want to learn a new skill, and this skill becomes very useful to them in enhancing their own profession. So, Anand, good question. Now answer. इसीलिए आनंद सवाल सही तरीके से पूछा. पहले बोला. प्रीवियस एक्सपीरियंस Yes. सवाल पूछने में उनको काम पे आ गए. तो that gap is there. We have to rectify. Definitely, we are going to rectify certain things. Budget is constraints for this research. Nowadays, we are doing in T-Hub, this startup, it is there. But incentives का कुछ दिक्कत है क्योंकि state financials are very bad. We have debt 8 lakh plus crores. Every month, I have to pay 6,500 to 7,000 crores per month for my debt. I have only 18,500 crores income per month. 6,500 crores I have to pay salaries for my employees. 6,500 crores for my debt loans and interest. 13,000 crores. After that, I am getting only 5,500 crores. I have all these welfare schemes. Out of this, I have to spend on all those. My need is per month 30,000 crores. Gap is 12,000 crores. So I'm trying my best to my debt restructure low. He has taken 11.5% at the rate of 11.5%. कि कोई भी आदमी सरकार में या गैर जिम्मेदार आदमी ऐसे काम कर सकता है. तो उनके लिए मैं 4%, 5%, 6%, 7.5% के अंदर एंड 40 years टेन्यूर डेट रिस्ट्रक्चर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ. तो वो थोड़ा मुझे कुछ स्पेस मिल गए तो आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस. दैट इज व्हाई आई हैव इनिशिएटेड स्किल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी. मतलब सर्टेन सेक्टर 1,10,000 स्टूडेंट्स आर पासिंग एवरी ईयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स. इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है, मार्केट में डिमांड है, मगर डिमांड सप्लाई में गैप है. जो सर्टिफिकेट है उनको इतना नॉलेज नहीं है, जिसको ज़रूरत है क्वालिटी नहीं मिल रहा. तो ये सब सारे सेट करने के लिए हम लोग कोशिश करें. आगे डेफिनेटली विल टेक कॉल ऑन दिस. Namaste, Revantana. Yeah, please stand up and introduce yourself. Namaste, Revantana, Shekharji. I'm Siddharth. I practice at the criminal courts and high courts of Telangana. So I'm one of those people who voted for Mr. Modi in the parliament and assembly Mr. Revant Reddy, like Bada Bhai and Chota Bhai. Sir, so I have a very rudimentary question. Across the city in Hyderabad and Secunderabad, you only find Congress flexis, Congress banners, and there's no opposition seen at all. So are you following the same iron hand theory that KCR Garu implemented in Telangana? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है. अभी उन लोग थक गए ना, सो आराम कर रहे हैं. वो फ्लेक्सी लगाए तो मैं निकाले तो मेरा गलती है. वो खुद लगाए नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ. अगर आप उसको अगर चाहना है तो आप 2-4 लगा के देखो, कोई निकाले तो मुझे बोलो. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. धरना चौक को बंद किया था. मैं मुख्यमंत्री बनते ही 24 घंटे में धरना चौक खोल दिए. कविता जी आजकल हर 2 दिन के बाद धरना चौक में बैठ रही, आपको तो पता है.
तो हरीश केटीआर सड़क पे जा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं. सो इतने सारे लोगों को जब रास्ता दिया, फ्लेक्सी वाले को क्या बोलूं मैं, वो भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, फ्लेक्सी बिजनेस. जितने लोग ज़्यादा फ्लेक्सी लगा देंगे, किसी का घर चलेगी. तो मैं किसी को कमाने के लिए, किसी को कारोबार करने वाले को मैं किसी को रोकता हूँ नहीं. Good evening, sir. Thank you very much for your precious time. And Shekhar ji, thank you for this session. Shekhar ji told that politics is very thankless job. So my question here is that running a state government is difficult, but particularly when the central government is not in tune with you, it's far more difficult. So what are the challenges you are facing? Because you are coming with your vision document also. So implementation without the support of central government, what are the challenges and hurdles which may be there in enforcing that vision document? Wanted to understand from you. Did you give us your name? Mahesh Bhattar, I'm the CFO of Vishnu Chemicals. All right. Mahesh, it is like a love So, marriage. sir, can I interrupt you for a second? I did not say politics is a thankless job. I said politics is an unforgiving profession. Because when politics thanks you, it thanks you in a very big way. So it's not thankless. It's just very demanding. Go ahead. महेश, फर्स्ट हाफ शेखर जी ने जवाब दे दिए. सेकंड हाफ, ये पॉलिटिक्स ऐसे है, सेंट्रल में आपका सरकार नहीं है, राज्य में सरकार आ, तो इट्स लाइक एन लव मैरिज. पेरेंट एक्सेप्ट भी नहीं किए, आप तो अगर लव मैरिज किए तो संसार को तो आगे लेकर जाना ही है. तो केंद्र सरकार ने आपको मदद नहीं दी है तो मैं राज्य में कुछ नहीं करता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है. अगर योर एल्डर्स इज नॉट कोऑपरेटिंग विथ यू ऑल्सो, यू हैव टू लीड योर लाइफ. तो राज्य में हमें पता है कैसे करना है, क्या करना है, लोकल रिसोर्सेस कैसे मोबिलाइज करना, जितना हो सकता है दिल्ली से उतना लेना. अगर नहीं भी मिला, हम एक प्लानिंग, एक तरीक़े से सरकार चलाने के लिए कोशिश करें. इतना कोई दिक्कत नहीं है, मगर यू हैव टू वर्क वन मोर एक्स्ट्रा आवर. क्योंकि सिस्टम सुधारने के लिए, सिस्टम आगे लेकर जाने के लिए यू हैव टू वर्क एटलीस्ट 18 आवर्स. तो नहीं है तो नहीं चलेगा. सो हॉलीडे है, वीकेंड है, ये सब नहीं, इसमें नहीं है. नो हॉलीडे फॉर एनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आपको मंडे टू फ्राइडे वर्किंग स्टाइल अलग है. ये तो 24/7 365 डेज. इवन 75 ईयर्स के बाद भी लोग काम कर रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, दूसरे में तो रिटायर होना पड़ता है. नमस्कार सीएम साहब. एक तो आपकी एनर्जी देख के बहुत अपना नाम और. मेरा नाम है वरुण खन्ना और मैं एमडी हूँ केयर हॉस्पिटल्स का. बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के. हम शेखर जी को पिछले 20 साल से सुन रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि जब ये किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो सवाल थोड़े कठिन हो जाते हैं और जवाब थोड़े मुश्किल. लेकिन आपकी एनर्जी देख के बहुत मजा आ रहा है. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू. मेरा सवाल आप ही के एक जवाब से है. आपने कहा कि 30,000 करोड़ की स्टेट को रिक्वायरमेंट है, 18,000 करोड़ हैं. बहुत सारे काम आप कर रहे होंगे, लेकिन ये 12,000 करोड़ का गैप बनाने के लिए आपके दिमाग में ऐसी कौन सी 2-3 चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपको उस लक्ष्य के पास लाएंगी और स्टेट का जो खर्चा है वो पूरा हो पाएगा? सो वेस्ट एक्सपेंडिचर को कम करना भी एक इनकम है. क्योंकि सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वहाँ पर ज़्यादा स्पेंड करते जा रहे हैं. तो पहले आप वेस्ट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए कोशिश करना. दूसरी बात, जो सर्विस सेक्टर है, फॉर एग्जांपल टेक इट हैदराबाद, आउटर रिंग रोड इनसाइड इज कोर अर्बन रीजन. दिस इज हैदराबाद, ऑलमोस्ट 1 crore 10 million पीपल आर स्टेइंग हियर. सो केसीआर ने ऐसा डिसीजन ले लिए कि फ्री वाटर, यहाँ पर मेट्रो वाटर वर्क्स वाले के जिम्मेदार है, जितना पानी दिए उसी के हिसाब से आप चार्ज कर रहे थे. तो सीवरेज के लिए कोई चार्ज नहीं है. जब सरकार ने फ्री वाटर दे दिए ना, उनसे एक पैसा भी कलेक्शन नहीं हो रहा है. अब ड्राइनेज सिस्टम पूरा खराब हो गए. तो परसों मैं सबको बुला के ऑफिसरों से मैं रिव्यू किया, तो बहुत कम. आजकल तो हाई राइज अपार्टमेंट्स आने के बाद पहले 1 एकड़ के लिए 1,25,000 स्क्वायर फीट कुछ परमिशन मिल रहा था. अनलिमिटेड देने के बाद 5 लाख स्क्वायर फीट, फॉर एग्जांपल 25 एकर्स में अगर आप अपार्टमेंट्स बनना है तो 1 crore 25 लाख स्क्वायर फीट आप बिल्टअप एरिया बना रहे. तो 3,500 अपार्टमेंट्स विथ साइज ऑफ 3,500 स्क्वायर फीट, मतलब हर घर में 3 गाड़ी भी लगा. एक 25 एकड़ में 12,000 गाड़ी, एक 25 एकड़ जगह में 4 लेवल्स ऑफ पार्किंग एरिया में,
मॉर्निंग 9:30 अगर वो ऑफिस को जाने के लिए 1/3 भी निकले ना, 25 एकड़ में से निकल कर 5,000 गाड़ी बाहर आ रहे घर से। वैसे एक एरिया में अगर आजकल ट्रैफिक जो जाम हो रहा है तो उसके लिए लाखों गाड़ी एकदम वही टाइम पे बाहर आ रहे हैं। तो उसका ड्राइनेज सिस्टम कहाँ लोड हो रहा है? ड्रिंकिंग वाटर आप फ्री दे दिए, 20,000 लीटर पर पर्सन वी आर गिविंग फ्री। तो ये पूरा सिस्टम सुधारने के लिए एक पैसा भी नहीं है। कम से कम वो चौक भी हो गए, खराब भी हो गए, रिपेयर करने के लिए भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो मैं बोला भाई ये सर्विस है, ये सर्विस में आपको चार्ज करो, क्योंकि ये सर्विस हम फ्री करते गए, ये सिस्टम जो बढ़ते जा रहा है, एंड ऑफ द डे गया हम लोग फ्री पावर में। इसीलिए मैं डिस्काम्स को अलग कर दिया। A++ था, सदर्न डिस्काम, नॉर्थर्न डिस्काम, बिकॉज ऑफ आवर फ्री पावर अदर थिंग्स, वो डिस्काम्स का रेटिंग अब C++ हो गए। तो वहां पर अगर लोन को जाना है तो 11.5% दे आर चार्जिंग बिकॉज ऑफ योर ट्रैक रिकॉर्ड, सिविल स्कोर लाइक। तो इसीलिए मैं जो फ्री का सेपरेट एक डिस्काउंट बना दिए, मतलब जितना भी So it's for what you what you give away free, there is a separate discom and you fund it from the budget. यस, जो डिस्काउंट जो फ्री दे रहा है पूरा एक अलग डिस्काउंट बना दिए। जो सदर्न डिस्काउंट, नॉर्थर्न डिस्काउंट, उसका परफॉर्मेंस 100 वो बैलेंस शीट के ऊपर बैलेंस शीट के ऊपर A++ हो जाएंगे, तब उनका 11.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 4% में 5% में आ जाएंगे। तो ये एरिया में हम लोग मेटिकुलस एक प्लानिंग कर लेना है। एंड जो हम लोग राइट भरोसा दे रहा है, 1,50 लाख एकर्स ऑफ लैंड, 70 लाख प्लस फार्मर्स को दे रहे हैं। उसमें टॉप ऑफ द टॉप हमारे मोहन रेड्डी भैया को आ रहे नहीं है, बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट IT कंपनी ओनर्स भी हम फ्री में पैसे दे रहे हैं, बड़ा बड़ा IAS ऑफिसर को हम फ्री में पैसे दे रहे हैं, हमारे जैसा नेता लोगों के खाता में बिना पूछा हम खाता में पैसे डाल रहे हैं। सो वॉलेंटियर डिस्क्लोजर, भाई मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसा वेलफेयर। सो जनता का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग अगर डिस्क्रिमिनेट कर दे के इनको मत दो, इनको मत दो, अगर हम कुछ भी ले ये तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो जाएंगे। सो गवर्नमेंट से जो वेलफेयर मुफ्त में मिल रहा है, जो जिसको जरूरत नहीं है वो वॉलेंटियर डिस्क्लोजर आके भाई हमारा बंद कर दो, लोग बाहर आ गए ना तब अच्छा हो जाएंगे। But politics में once you give something for free, it is very difficult to charge for it because we are sometimes I say we are a country of freedom fighters. सब कुछ फ्री चाहिए हमको। तो जिसको एक बार आदत पड़ जाए उसको चार्ज करना बहुत मुश्किल है। So how much of a challenge is it? तो सब कुछ फ्री में पूछे तो क्वालिटी नहीं पूछना, जिस दिन आएंगे उसी दिन आएंगे। तो उसके लिए भी तैयार हो जाना है, क्योंकि सब कुछ जो अनडिजर्व पर्सन हैज टू गेट एवरीथिंग। अनडिजर्व पर्सन वो खुद आकर छोड़ना है, क्योंकि हम पूरा दुनिया बदलते जा रहे हैं। एक बार मोदी जी ने शुरू किया था LPG के ऊपर, गिव इट अप। आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ मेरा व्यू। मैं हम लोग कुछ लागू नहीं करने वाले। आपका स्टेट जो है, जो जीता वही सिकंदर, राजनीति में आपको पता है। ये सब सारे नीति बोलते गए तो चुनाव में हार गए तो सुनने वाले भी नहीं मिलेगा। देखिए जो आपकी स्टेट है, योर स्टेट टुडे by way of per capita income is the richest in the country. Yes, I do. Yes, it is ahead of Karnataka, it's ahead of Haryana. Number one in It India. is number one. Number one in India. At the same time, it has a lot of very poor people. So inequality is also there greatly. So what is the solution? Is it to improve your villages or more urban areas or to expand Hyderabad so more people can come in? So urbanization is one of the solution for this poverty eradicate. Rural, that is why I've created core urban region, semi-urban region, rural. Outer ring road inside is core urban region. This is for service sector. Outer ring road to regional ring road. Nowadays we are going to construct a regional ring road that is 360 kilometer radius. So from outer ring road to regional ring road, the internal sector is industrialization, क्योंकि industries commercial activity बढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोविड के बाद चाइना +1 कंट्री के लिए बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं। साउथ कोरिया से लेकर जापान तक वो लोग चाइना में इन्वेस्टमेंट, दे वांटेड टू शिफ्ट, रीलोकेट देयर इन्वेस्टमेंट्स, दे आर सर्चिंग फॉर वन मोर कंट्री। तो वन मोर कंट्री में तेलंगाना स्टेट इज वन ऑफ द प्लेस फॉर दैट। सो कोर अर्बन रीजन, semi-urban is a commercial activity for industrialization and everything.
regional ring road to border of Telangana is rural. Rural is agriculture economy. Semi-urban is industrial economy. Core urban is service sector. दी 3 लेयर्स तेलंगाना आपको दिसंबर 9 को आपको ऐसा पिक्चर दिख जाएंगे, एक सर्कल के अंदर कोर अर्बन रीजन, दूसरे सर्कल के अंदर सेमी अर्बन, तीसरे सर्कल में रूरल एरिया. हम लोग इसके पॉलिसी से पॉलिसी, उसके साथ साथ सब कुछ डेवलपमेंट, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सब सारे हम लोग प्लान करते जा रहे हैं. तो कि एक बार एक पॉलिसी बनने के बाद इन्वेस्टर के लिए भी आसान हो जाएंगे. कनेक्टिविटी, हम नया शहर बना रहे हैं. अभी तक तो आप कॉलोनीज देके, नहीं तो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नहीं तो नॉलेज पार्क, ऐसा 4 एकड़ 400 एकड़ 500 एकड़ में डेवलपमेंट देके. सो आउट एयरपोर्ट से 20 मिनट रास्ता, 30,000 एकर्स में भारत फ्यूचर सिटी. आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू सिटी फॉर एवरीथिंग. So plans are ready. By December we are going to launch that future city. Future city is solution for everything. AI से लेकर सब कुछ. अब कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी रहना है, डिफेंस प्रोडक्शन भी शुरू करें. एवरीथिंग. डिफेंस कॉरिडोर भी हैदराबाद बैंगलोर डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं हम लोग. सो फार्मा, GCC, डेटा सेंटर्स वी आर नंबर 1 in India. GCCs we are number 1 in India. Law and order maintenance, we are India's number 1 rating given by Government of India. State-owned tax collection in Telangana is number 1 in India. Drugs control में number 1 in India, Hyderabad and Telangana state. So हर जगह में हमारा पॉलिसी अभी पता लग जा रहा है कि भाई हैदराबाद सेफेस्ट. जब ऑपरेशन सिंदूर वार, पाकिस्तान इंडिया वार हो रहे, मिस वर्ल्ड कंडक्ट किया, लॉ एंड ऑर्डर कितना कंट्रोल किए. तो मिस वर्ल्ड, last time Miss World I have conducted in Hyderabad. 28 days, 108 countries they've stayed in Hyderabad without any problem. So Miss World से लेकर हर चीज हैदराबाद में आप काम कर सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं. I'm Apasvi, chartered accountant and event organizer. Today, mental wellness has become a very big deal right now. In Hyderabad especially, people are more concentrating on IT structure, pharma and everything. When seen with the census, in respective to the child education, there are more suicides happening in Hyderabad also. What is government of Telangana keeping its vision in mental wellness, not just in education system, but across the corporate lifestyle or anything with that perspective? जॉइंट फैमिलीज तोड़ने के बाद, जॉइंट फैमिली रहे तो ग्रैंड ग्रेट पेरेंट्स, जॉइंट फैमिली इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ फॉर एवरी इंडिविजुअल फैमिलीज होने के बाद उन लोगों का साइकोलॉजिकल कुछ जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम से सुसाइड कमिटमेंट ज़्यादा हो रहा है. इसीलिए हम लोग हर स्कूल में काउंसलर्स नो अपॉइंट करने के लिए मैं हर स्कूल को इंस्ट्रक्शन दे दिए, क्योंकि यू हैव टू ड्रॉ योर अटेंशन इफ स्टूडेंट बिहेवियरल चेंजेस को रीड करना है कि वो अचानक एक ही दिन में सुसाइड कमिट नहीं करते. उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस होते रहता है. अगर आप वो जानकर कुछ काउंसलिंग किए, ये सुसाइड्स कम होने वाले. तो इसीलिए मैं पूरा एजुकेशन सेक्रेटरी को बोल दिया, ऑल प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में ये पूरा जैसा फिजिकल डायरेक्टर है स्पोर्ट्स के लिए, गेम्स के लिए, लैंग्वेज टीचर्स है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट्स के लिए, वैसे ही हर स्कूल में काउंसलर को लेना है. दे नीड काउंसलिंग रेगुलरली, क्योंकि इंडिविजुअल हो गए, आइसोलेट हो गए लोग. जॉइंट फैमिली नहीं है, कॉलोनी में बच्चे लोग जमा होने के लिए कोई पार्क जगह नहीं मिल रहे. आजकल तो किसी के अपार्टमेंट में रहे तो स्कूल जा रहे, स्कूल से वापस आके अपार्टमेंट में रह रहे, अपार्टमेंट में रहकर टीवी देख रहे हैं. नहीं तो उनके लिए कोई भी कुछ प्रॉब्लम, छोटे प्रॉब्लम भी उन लोगों को ऐसा दिखेगा कि किसी से शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है, तो बड़ा प्रॉब्लम जैसा दिखेंगे. सो these are the issues. This is a new phenomena. तो इनके लिए हम रीड करना है, रिसर्च भी हो रहा है. जो रिसर्च स्कॉलर से उन लोगों से मेरा कंटिन्यूस मीटिंग्स होते जा रहे हैं. जो वन ऑफ द NGO 3-4 NGOs से हम लोग काम कर रहे हैं, वो NGOs कुछ हमको इनपुट भी दिए. आने वाले दिनों में इस सिस्टम को हम सुधारने के लिए एक पॉलिसी लेकर आएंगे, एक सिस्टम डेवलप कर देंगे. इंडिविजुअल आई कैन नॉट एड्रेस, आई हैव टू डेवलप इन अ सिस्टम टू एड्रेस दिस इशू. दिस इज वेरी सीरियस कंसर्न इशू. Why? Because nowadays single children is the family.
वो सिंगल चिल्ड्रन अगर सुसाइड कमिट कर लिए तो वो परिवार का पूरा सब कुछ गए। तो इसीलिए इट्स अ वेरी serious issue. Government is having a serious view on this. Namaste, CM Garu. When you became the CM, I was most happy. Your name, please. Yash Agrawal. I'm into real estate. When you became CM, December 2023, I was very happy कि एक youth CM बन रहा है. In fact, my schoolmate Vamsi Garu also is a member of parliament from Telangana only. I have full confidence in your vision and future capabilities. But my only point of view is that a lot of people, outside investors, are really on a wait and watch mode. Hydra ho raha hai, a lot of things happening, and they are not very clear as to when they want to invest, how they want to invest. You think will your policy in the coming 6 months will change that vision completely? Definitely. Talk a little bit about Hydra also. Okay. So, Hydra is a disaster management agency. Hydra is addressing our water lags, traffic jams, illegal encroachments, lake encroachment, nala encroachment, road encroachment. All illegal activities we are going to address through Hydra. जो इलीगल एक्टिविटी करने वाले के लिए एक डर है हाइड्रा, तो वो लोग इतना पैसे लगा देकर नेगेटिव कैंपेनिंग किए। मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ शेखर जी, आप कल जाके देखो, गंडीपेट ड्रिंकिंग वाटर सोर्स फॉर हैदराबाद. मोक्षगुंडम विश्वेश्वर हैज डिजाइंड दैट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन 1908. जब फ्लड्स आया था हैदराबाद शहर में हजारों लोग मर गए थे. निज़ाम सरकार ने मोक्षगुंडम विश्वेश्वर को अपॉइंट करने के बाद उस्मान सागर हिमायत सागर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बनाया. वही हैदराबाद क्वाइट लॉन्ग टाइम दैट इज द सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर. ज़्यादा पैसे कमाने वाले पूरा वो गंडीपेट के बगल में राउंड द एरिया ऑफ दैट गंडीपेट they have constructed their farm houses in acres of land. They have given their drainage connection into the drinking water. So what should I do? You tell me. Lakhs of people are drinking that water. All these big wigs who can influence politics, who can influence government, they have constructed their farm houses, palatial palaces, ड्राइनेज कनेक्शन ले जाके वो पीने का पानी में कनेक्शन कर दिए. वहां पर कोई ड्राइनेज कनेक्शन नहीं है. बफर जोन में बना है, कोई फुल टैंक लेवल पे बना है. तो वो ऐसे तोड़ने के लिए मैं इस्तेमाल किया. वो लोग इतना बड़ा लोग है, दिल्ली में जो बड़े बड़े नेता है, 1 घंटा में सब लोग लाइन पे आ गए. मेरे को, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि सब आ गए. पूरा सिस्टम, हिंदुस्तान को चलाने वाले जितना भी सिस्टम है तोड़ना शुरू कर दे. 1 घंटे में लोग सब लाइन पे आ गए कि भाई वो मत तोड़ो, वो मेरा पहचान. तो आपने बंद कर दिया तोड़ना? आप इसीलिए बंद नहीं किया ना, इसीलिए हाइड्रा के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं. वन ऑफ द फिल्म स्टार इज क्वाइट पॉपुलर इन तेलुगु इंडस्ट्री. ही हैज कंस्ट्रक्टेड ए फंक्शन हॉल इन डायरेक्ट लेक बेड. इसीलिए तो सिटीज हमारी फ्लड हो रही है. दैट्स व्हाई बैंगलोर गेट्स. जहां पर पानी है वहां पर आप गए. यस. जहां पर आप आए वो पानी इधर आ रहे. पानी के घर पे आप घुसे, पानी आपके घर पे घुस रहा है. इतना ही फर्क है. तो पानी का जगह पानी को दे रहा हूं मैं. नाला एंक्रोचमेंट पश्चिम सिकंदराबाद में आप देखा है ना, पैराडाइज का नहीं, पूरा 100 फीट का नाला है, एक जगह में 10 फीट हो गए. कोई बड़ा नेता, बड़ा आदमी वो पूरा एंक्रोच कर लेके 5 फ्लोर्स बिल्डिंग हैज कंस्ट्रक्टेड, हैज गिवन रेंट फॉर कमर्शियल एक्टिविटी. सो पूरा बाटल नेक हो गए. पूरा वहां पर 100 फीट आ गए, यहाँ पर 10 फीट हो गए. पीछे 25 कॉलोनी, जब भी बारिश आए तो 25 कॉलोनी पानी में डूब रहा है. तो हाइड्रा जाके मार्किंग कर दे, ये भी 100 फीट कर दिया, 5 मंजिल का बिल्डिंग में गिरा दिया. तो वो गाली देता है क्योंकि उनका 25 करोड़ का चले जा रहा है. 50 लाख रुपए सोशल मीडिया में लगाने में उनको क्या फर्क पड़ता है. तो गरीब लोग कुछ नहीं बोल रहा है. जो इफेक्टेड पार्टी से वो बेनिफिशियर्स बाहर आके नहीं बोल रहा है भाई मेरा 25 कॉलोनी बच गए, हम लोग रेवंत जी ने अच्छा किया, वो नहीं बोल रहा है. जिसका 5 मंजिल बिल्डिंग गिर गए वो आके गाली दे रहा है, रेवंत ऐसा हो जाने दो, ये वो नहीं, वो दो, वो होने दो. हाइड्रा से जो गिरा है मेरे को क्या मिलने वाला है. तो मैं सिस्टम को सुधारने के लिए कोशिश कर. मैं आज भी शेखर जी आपके सामने बोल रहा हूँ, लेक एंक्रोचमेंट, नाला एंक्रोचमेंट, रोड एंक्रोचमेंट, कोई भी हो, कितना बड़ा भी हो, देश का प्रधानमंत्री भी होने दो, छोड़ने वाले नहीं हूं. तोड़ के दिखाऊंगा मैं, ये मेरा वादा है आपसे. उससे आप डरिएगा नहीं, नहीं तो हमारी सिटी सब फ्लडेड रहेंगी. लेडी है आपका, आपके पास. हाँ.
Thank you for this conversation, Shekhar sir and Mr. CM. If आपका I नाम, may, your name. my name is Harleen Manocha. I'm a former journalist and currently I work in the academic and social impact sector, focusing on women empowerment. If I may, I would like to bring the conversation back to the caste census. As a researcher, I know data collection tends to be a biased activity at times. There have also been reports that in the state, during caste census in the state, the representation has of backward classes has depleted in terms of the reportage of it. How does the government see on fixing that? And once the data is in, what then? Does the government plan on bringing it, grassroots movements, Dalit movements, to ensure that the policy is as inclusive as can be for different communities' needs? So ये हमेशा मैं कास्ट एसोसिएशन को मैं मिलते रहता हूँ. वो लोग आके बोलते हैं चुनाव से पहले ज़्यादा लोग आते, चुनाव के बाद थोड़ा कम लोग आते. वो लोग हिसाब बोलते रहते हैं हमारा 50 लाख है, हमारा 25 लाख है. मैं पूरा गिना एक दिन बैठकर सब कास्ट रिप्रेजेंटेशन का 12 करोड़ हो गए. तेलंगाना के जनता 3 करोड़ 55 लाख. हर किसी का कोटे के लिए ज़्यादा बोल रहे हैं. एक्चुअल गिनने में शुरू किए तो एक्चुअल्स आ गए. एक्चुअल्स आने के बाद कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है. दिस इज सेल्फ डिक्लेयर्ड डेटा. दिस इज नॉट गवर्नमेंट कलेक्टेड डेटा. पहले मैं घर घर को नंबर डाला है. वो नंबर को 150 घर को एक ब्लॉक बना दिए. 150 घरों को जाने के लिए एक एन्यूमरेटर को बनाए. So 95,000 blocks are there in Telangana, the entire Telangana state. I have appointed 95,000 enumerators from government service. They may be teacher, they may be any other government सर्विस काम करने वाले. फिर 60 डेज में 150 घरों में जाकर 8 पेजेस क्वेश्चनर देकर 56 क्वेश्चंस आर देयर. नेम, सन ऑफ, कास्ट, एवरीथिंग, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, क्रेड, उनको वेलफेयर में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, सब कुछ उसमें डिक्लेयर कर दे के वो दस्तखत करना है. उसके बाद एन्यूमरेटर दस्तखत करना. हर 10 एन्यूमरेटर को एक सुपरवाइजर को बनाया मैं. सुपरवाइजर साइन करना. ये पूरा लेकर मंडल हेडक्वार्टर जाके डेटा एंट्री ऑपरेटर कने बैठकर ये बंदा डेटा एंट्री करवाना है. क्योंकि आप लिखने में कुछ स्पेलिंग लिखे तो अगर मैं खुद अगर एंट्री किए तो मैं अलग स्पेलिंग कंप्यूटर में एंट्री किए तो गलत हो जाएंगे. तो इसीलिए I have appointed 10,000 supervisors on this 95,000 enumerator. 10 enumerator is equal to 1 supervisor. ये सब सारे लोग I have appointed 70,000 data entry operators in different places. They have to entry all this data. Computerized की जो लोग मेरे कहने डिक्लेयर किया वही डेटा है. जनता कितना है अभी समझो केसीआर, केटीआर, हरीश ने डिक्लेयर नहीं किए. हमारे गिनती में वो लोग है नहीं है. मैं कैसे बोल सकता हूँ वो है बोल के. कोई भी जाति का जो जाति डिक्लेयर किए डिक्लेयर्ड डेटा में मैं एनालिसिस किए वो हिसाब से मैं परसेंटेज बोल दिए. मेरा परसेंटेज मैं आकाश से कहीं से नहीं निकाला. मेरा सरकार से कोई डेटा लेकर नहीं आया. मैं डेटा कलेक्ट किया, पूरा एनालिसिस किए. हैव गिवन वर्टिकल्स, कास्ट, सबकास्ट. 242 कास्ट आर देयर इन तेलंगाना. कर्नाटक में भी समथिंग डिफरेंट नंबर, उत्तर प्रदेश में भी समथिंग डिफरेंट नंबर. आई हैव 242 कास्ट. आई कैन से authoritatively this is what my caste composition. हर कास्ट का कितना है मेरे कन्ने नंबर है. हर 150 जो मैनुअल से कंप्यूटर एंट्री करने के बाद उसको बांध दे के ऑफिस में रखना. इसीलिए मैं सवाल किया असेंबली में, आप जो गलती बोल रहे हैं कौन सी ब्लॉक में गलती है आप बोलो. वो 150 एप्लीकेशंस आपको देता हूं. 150 घरों में जाओ, आप सेल्फ डिक्लेयर डेटा है उनके परिवार को पूछो कौन से जाति के. प्रॉपर्टी में कुछ गलत बोल सकता है, शादियों में कुछ गलत बोल सकता है, मगर कोई आदमी कास्ट में गलत नहीं बोल सकता. जो कास्ट है वो सेल्फ डिक्लेयर्ड कास्ट. आप ब्यूटीफुल एक ऑब्जर्वेशन, वन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन इन तेलंगाना, 3.9% दे हैव डिक्लेयर्ड नो कास्ट. शेखर जी, तेलंगाना में आउट ऑफ दिस 3 करोड़ 55 lakhs पीपल, नो कास्ट 3.9% आर देयर. ऑलमोस्ट 4% हमारा कोई कास्ट से लेना देना नहीं है, वो डिक्लेयर किए. उसमें वो बीसी होगा, एससी होगा, रेड्डी होगा, कम्मा होगा और कोई होगा. तो वो उनके एप्लीकेशन में खुद लिखा है नो कास्ट. हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया अब कास्ट के साथ साथ नो कास्ट भी एक कॉलम लगा, लाइक नोटा.
I have introduced that column also in my data application. 3.9% वो declare किए no caste, But could that be about minorities saying no caste? not minorities. Not minority. Educated, who is elite crowd are Not Muslims or Christians. मैं एप्लीकेशन से जान सकता हूँ वो कौन है. अदर इंफॉर्मेशन मेरे कने है ना, हाँ हाँ. मैं उससे मैं रीड कर सकता हूँ उनको. बिटवीन द लाइन्स आई कैन रीड. So this माइनॉरिटी का अलग है. माइनॉरिटी अलग है. 3.9% is from Hindu Muslim community. practicing minorities are OBCs are 10.5%, 2.5% are forward caste. Muslim practicing. ऐसे हर practicing का अलग अलग है. Hindu practicing are 46.5%. Muslim practicing are 10+%. That is how 56.5% is total OBC. So 3.9%, almost round up 4%. नो कास्ट डिक्लेयर किया. उसमें कौन से कास्ट वाला मैं क्यों डिस्क्लोज करूं. वो नो कास्ट कॉलम फिलअप करिए. वो उनका कास्ट डिक्लेयर नहीं करना चाहता है. मे बी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मे बी डॉक्टर, मे बी इंजीनियर, मे बी IAS ऑफिसर, मे बी कोई सोशल एक्टिविस्ट. वो कास्ट से बाहर आ गया होगा. Thank you, Very sir. respected veteran, sits on many boards, former chairman of Canara Bank and Bank of India also. Indian Canara Bank and Indian तो Bank. Indian Bank, yes. कुछ लोन दे सकता है हमारे लिए. कम से कम रिकमेंड तो भी कर सकते हैं. Sir, let me start आप with जो भी this. सवाल पूछेगा मैं जवाब दूंगा. Let me start with that, sir. I think you are the most eligible chief minister to get it. थैंक यू. Sir, I would like to submit, in fact, Shekhar Gupta ji ne did hint, our state is having the highest per capita in the country. And you are very dynamic chief minister, young chief minister with lot of progressive policies. And our state is full of entrepreneurs. Unlike other states, you know that we have a fabulous combination. It is like another America, another Switzerland, another Singapore. Now we have a very dynamic leader. My humble submission is, yes, budget constraints are there. Government should not really get into all activities. Only be the fulcrum and catalyst. Harness all the capital available in the state, all the enterprise available in the state. They love your leadership and they know, since you asked me as a banker, the stability is very important. So you have a very stable government. So my humble submission is there. Be a catalyst to generate the growth. So your dreams would be there and Telangana would be a leading state under your leadership. Let me also conclude one more thing, sir. You are one of the most potential Prime Minister candidates in time to. My humble submission is there. Aim, because it is the Congress party which has liberalized. So political ideology doesn't really come in the way. Please liberate and have a public-private partnership. Unleash the capital available, the enterprise available, and your great leadership. Thank you, Rao Garu. I wanted to share with you. 2006, as a Jilla Parishad member, I got elected as independent. 2007, as an independent MLC. From local bodies, I got elected as independent. Then I have joined with Naidu Garu, 2009 MLA, 2014 MLA, 2019 MP, 2023 Chief Minister. 17 years में मेरा जर्नी जिला परिषद मेंबर लोकल बॉडी से लेकर मुख्यमंत्री तक ये रास्ता आप जैसे सब लोग मदद दिए, प्यार दिए, आपका जो भी पॉजिटिव टॉक जो किए वही यहाँ तक लेकर आ गए. मगर मैं यहाँ ही रुकना चाहता हूँ, मगर यहाँ पर 10 साल रहना चाहता हूँ. आगे रास्ता के लिए आप मत सोचो. यहाँ पर तेलंगाना के लिए मैं बहुत कुछ करना है. तेलंगाना मुख्यमंत्री मैं बार क्या 10 साल एक कुर्सी में मैं बैठूंगा. 10 साल तेलंगाना वन ऑफ द बेस्ट स्टेट बनाने के लिए मैं जितना ताकत लगा सकता हूँ उतना ताकत लगाने के लिए हम लोग तैयार हो गए. थैंक यू. Thank you. My name is Pradeep Singh and I am a startup founder. Hyderabad is an adopted city. What's your startup? The startup's name is Red Health and we are building 911 and emergency systems for the country. And we are in 34 cities and Hyderabad is our home.
Sir, it's an adopted city for me. I grew up in Chandigarh. I'm a voter here. I am a citizen. To another Chandigarh wala. हाँ जी sir. So Mohali actually. It is a planned city. And when I moved to Hyderabad in 2014, I also traveled abroad, lived abroad and moved here. And Hyderabad, of course, urbanization has happened. A lot of population density is there. But this is an urban planning question. And I think a lot of us, and as a side note, my perception of yours has completely changed after listening to you. I came in with a certain bias, but I think it has now given, after listening to you, it has given me the courage and the confidence to ask you this question and maybe a recommendation. I think the quality of life of Hyderabad has declined over the last few years. And it has to do with certain urban planning things, right? My office, I live very close by, my office is very close by, and I spend 25 to 30 minutes in traffic that is not just because of cars. And those cars are everywhere in the world, right? We have skyscrapers everywhere in the world. I think it is an urban planning problem. There are traffic policemen that are not to be seen. The traffic situation has worsened. Footpaths are not there, pavements are not there. I have a son now. I can't take him anywhere. There is no park. There are no green spaces left. I think all we do every 3 to 6 months is try to travel abroad to find that place where we can go with our child somewhere or maybe enjoy a walk. And I think given we are the richest state in the country, we should also be one of the best cities in the country. We are, but I think there's a lot of potential if you actually listen to people who I speak to, and I'm sure you have, they talk to you. I think there's a lot that we can do here. And another thing, as a startup, 80% of my leadership has actually moved from Bangalore and Bombay into Hyderabad. And I'm struggling to retain them here because they can't walk. Everything shuts at 11:30 during the weekday. And as much as I want to contribute to the economy and bring people here, I think some of these fundamental things we can work with and solve. And this will actually catalyze a lot of further startup entrepreneurs like me to grow for the city and from the city. Definitely, ये हम लोग महसूस किए. That is why we are planning to expand my metro to last mile connectivity. जिस दिन हम लोग मेट्रो बनाए थे, दिल्ली के बाद हैदराबाद था. ये 10-15 साल से हम लोग 9th प्लेस को चला गए. तो मल्टी ट्रांसपोर्टेशन ये बनाने के लिए हम लोग जहाँ पर जो 2013-11 में जो स्टक डाउन हो गए वहीं पर रुके. सो अभी मेट्रो रेल के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी हम प्लानिंग कर रहे हैं. मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट. सो आई वांटेड टू ओपन वन मोर साइकिल फॉर आवर इकोनॉमी कि डे टाइम में जो पूरा हैदराबाद शहर चलाएंगे, रात को मूसी रिवर में नाइट इवनिंग 7 to मॉर्निंग 7 तक रात को वो साइकिल पूरा इकोनॉमी बनाने के लिए, नाइट इकोनॉमी बनाने के लिए मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट. आप सब लोग ये समझ रहे हैं मूसी ब्यूटिफिकेशन. इट इज़ नॉट मूसी ब्यूटिफिकेशन. इट इज आई एम गोइंग टू ओपन वन मोर साइकिल फॉर आवर इकोनॉमी. सो एलिवेटेड कॉरिडोर्स, IT कंपनीज, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म, डाउनटाउन. हम लोग न्यूयॉर्क जाकर डाउनटाउन में रहने के लिए वोटर ढूंढता है. हिंदुस्तान में जो शहर पुराना हो जाएंगे वो छोड़कर नया भागते जा रहे हैं. सो आई वांटेड टू रिवाइव माय ओल्ड सिटी. दैट इज ओरिजिनल सिटी. दैट इज वाई 55 years मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट बोथ साइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए हम बना रहे हैं. लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम कोशिश कर रहे हैं. तो ये सब सारे हम जान लिए. और पब्लिक भी थोड़ा बहुत समझना है कि ये ट्रैफिक में क्योंकि उन लोग गलती करते हैं. अगर फाइन किए तो फाइन बोलेगा, अगर पकड़ लिए तो केस बना रहे. स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम लोग कोशिश करें. मगर बाहर कंट्रीज में आप लोग इतना सिविक सेंस से आप चलाते गाड़ी, नहीं तो आपके बिहेवियर, यहाँ आते ऑटोमेटिकली हम हवा लेकर बदल जाते हैं. तो वो भी थोड़ा एजुकेट करना है. लोग जो एजुकेटेड है वो लोग तो भी कम से कम. इसीलिए हम कितना वाइडनिंग कर देंगे, हम जितना करना है कर दिए. सो इसीलिए हम लोग मेट्रो रेल के मल्टी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं. मूसी में जो डेवलपमेंट लेकर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं. सिटी एक्सपेंशन के लिए कोशिश कर रहे हैं. रीजनल रिंग रोड, रेडियल रोड्स, ये सब सारे आप जो बोल रहे हैं वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं. एंड हाई रेज ऑल्सो वन ऑफ द अनलिमिटेड FSI ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर दीज इश्यूज. एंड हमारा जो हैदराबाद शहर के जो ड्राइनेज सिस्टम है पर डे 2 सेंटीमीटर बेसिस पे हम बनाए. बारिश आएंगे एक दिन में 2 सेंटीमीटर का. क्लाउड बस्टर के वजह से 2 घंटे में 40 सेंटीमीटर रेनफॉल इज हैपनिंग इन हैदराबाद. तो 2 घंटे में 40 सेंटीमीटर अगर बारिश आएगी तो कोई सिस्टम
कुछ काम के नहीं है, बस जस्ट स्टैंड स्टिल हो जा रहा है। तो ये क्लाउड बस्टर, आप कोविड के बाद क्लाउड बस्टर्स, रेनफॉल सिस्टम, रेनफॉल परसेंटेज, पूरा साइकिल चेंज हो गई। इसीलिए क्लाइमेट चेंजेस स्टडी करना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम बैंगलोर में, मुंबई में, चेन्नई में क्यों सड़क पे पानी आ रहा है? नॉट ओनली एंक्रोचमेंट, लेक एंक्रोचमेंट, नाला एंक्रोचमेंट, इट्स ए क्लाउड बस्टर। हम लोग पूरा डिजाइन किए, 2 सेंटीमीटर्स पर डे हम सिस्टम डेवलप किए, मगर 2 घंटे में 40 सेंटीमीटर्स अगर बारिश आ गए तो पानी कहाँ जाएंगे? सड़क पे, बिना सड़क, बिना घरों में, बिना कॉलोनीज में। तो इसके लिए क्लाइमेट चेंजेस भी आप लोग जो एक्सपर्ट्स है, expert has to study on climate changes rather than this infrastructure. Then only we can address this issue. So we are focusing on that climate changes and infrastructure, and the cloud busters also continuously it is happening. तो ये सब सारे एड्रेस करने के लिए हम कोशिश करें। इट्स इनिशियल स्टेज। इफ यू हैव एनीथिंग इनपुट, यस डेफिनेटली गवर्नमेंट इज देयर टू टेक योर व्यू और योर सजेशन। डेफिनेटली वी वांटेड टू इम्प्रूव आवर लाइफ, city life, क्योंकि Hyderabad is the only one source for my income. 60% of the state income is coming from Hyderabad only. So I cannot neglect. I have to spend, I have to improve, I have to take advantage from my Hyderabad. Then only my state will survive. So definitely this is only 1.5 year. First 6 months तो parliament election में चला गया, अगला 6 months में तो हमारे बाबू लोगों को समझने में चला गया। अभी आखिरी 6 months में हम काम कर रहे हैं। 18 months out of my एक्सपीरियंस एज ए चीफ मिनिस्टर, 6 महीने से मैं काम में लग गया। मतलब जनवरी 1 दिसंबर 9 2024 से अभी तक 6-7 महीने में मेरा कुछ काम मैं जम गया। अभी थोड़ा सेटल डाउन हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सब कुछ। अभी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा कि द प्रिंट में वी डोंट यूज द एक्सप्रेशन बाबू फॉर सिविल सर्वेंट्स। In fact, we also, as far as possible, don't use bureaucrat. We say civil servant. Civil servants कई बार headlines में लंबा हो जाता है, but civil servants is better. But when somebody says babu, it's all right. Although in this place, if you say babu, sometimes it means somebody else, one individual. So मैं कोई बोलेगा बाबू को समझने में 6 महीना लग गया। So मैं बाबू को तो 12 साल में समझ गया, अभी 6 महीने का कोई जरूरी नहीं है। Ma'am, you and the young man there, and then I know that this is a very engaging conversation, but we can't keep the chief minister forever. So maybe these 2 questions and one more in the back. The lady's been raising her hand, and then I will see how short the questions are and how much time we have. We'll try to accommodate everybody, but we'll be back. We'll be back in Hyderabad very soon. So please put this on your calendar that when we come again, please come, and then tell me that you asked to ask a question but did not get a chance. I will give you priority, and we are here thanks to our partners, which is the Quorum Club and also Kotak Private. So thank you very much, both partners, and may you both keep doing better and better. Good evening, Revant ji. Good evening, Shekhar Gupta ji. I'm Malati, entrepreneur. Recently, I have been to our tourism places. They're very bad situation, especially these 2-3 years onwards. I've taken some of our relatives from abroad, so I felt very shame. Especially Charminar area, these vendors are sitting on the 4 chambers, the 4 pillars. So I felt very sad. Situation is very bad. We have very few tourism places in Hyderabad. So you have to advise properly. We have people there, but they're not doing anything. I think they need training. And even for walkers also, it is a big menace. I think control cheyala meru. Especially chinna bandi అమ్ముకునే వాళ్ళు ఆ వాకింగ్ చేసే ఏరియానంతా బ్లాక్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ కోసం ఒక సెపరేట్ ప్లేస్ని అలాట్ చేయాలి మీరు సెంటర్లో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. गवर्नमेंट ऑब्जर्व किया है सब सारे, इसीलिए हम लोग मिस वर्ल्ड मारथन भी इन एंड अराउंड शाह मीनार एंड चूड़ी बाज़ार, द लाट बाज़ार यू कॉल, सो वहाँ पर भी लेकर गए। वहाँ के लोगों को, जनता में भी कुछ बदलाव लेकर आने का ज़रूरी है। फोर्सफुली हम लोग किए तो, छोटा मोटा काम किए तो भी, आप पॉलिटिकल सिस्टम आपको तो पता है, तो ये सिस्टम
सोसाइटी से भी सरकार को कुछ मदद मिलने का है, क्योंकि सरकार कानून बना सकता है, कानून को लागू कर सकता है, मगर जब फोर्स किए तो रिएक्शंस भी कुछ अलग होने वाले हैं. आप जो बोल रहे हैं वो प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग हेरिटेज रिवाइवल का भी एक पॉलिसी बनाए. सो हेरिटेज स्ट्रक्चर जो भी है उनके लिए पेडेस्ट्रियल वॉक के लिए गाड़ियों का लोगों को पूरा बंद कर दे के खाली पेडेस्ट्रियल वॉक के लिए चारमीनार पेडेस्ट्रियल वॉक का भी हम डिजाइनिंग बना रहे हैं. आने वाले दिनों में कोई गाड़ी वहाँ पर तक नहीं जाएगा. मदीना का ने रोक दे के कोई भी चल रहा है, पैदल चल रहा है. सो वो एरिया पूरा पेडेस्ट्रियल वॉक बनाना है. अल्टरनेट रोड्स भी हम प्लानिंग कर रहे हैं. सो वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट प्रॉब्लम. वी आर गोइंग टू रिजॉल्व शॉर्टली. I can see that one odd street in Bengaluru has been pedestrianized. Even in Delhi, Chandni Chowk is pedestrianized. Young man here. Hi, sir. Hi, sir. So, unlike most people here, I'm not a professional. I'm a fourth-year engineering student. Sir, to build up on you. And the name. I'm Shashank Siddhartha. I'm a fourth-year mechatronics student in Mahindra University. Sir, to build up upon you, I'm an engineer. And I'm in my fourth year now, so I've been looking for internships or deep tech startups that I really want to work with. And in the last month or so, I've really realized that the opportunities here are not a lot for me. I've seen a lot of good deep tech startups. My dad is a deep tech guy. He's into nuclear fusion reactors. So when I go on LinkedIn, look for places, most of them are in Bangalore or anything like you've mentioned. And like Mr. Rao said, I'm an amateur. I'm just going to become a professional. I'm starting to think maybe it's better for me to study abroad, get brought up abroad, have a different mindset, maybe settle in the US. I don't know, maybe 5 to 10 years down the line, will I be able to come back to Hyderabad and see the deep tech startups being pushed up completely? Will I be able to find very, very, very professionally upheld deep tech startups in Hyderabad or in India? Is that an opportunity for me? I'm asking for an opinion. I'm at the brink of my career and I don't know what to do. So we'll have him, the lady in the back. Siddharth, आप जो कह रहे हैं, my chief secretary is here, Mr. Ramakrishna Rao will take care of certain things, and I would request from this dash, CSR funds has to contribute something for this developmental activity. Big corporate companies are out of 500 Fortune companies, 85 corporate company footfalls are here in Hyderabad. They have to spend something for this thing. So we have to, government is going to coordinate with them for CSR funds, social corporate responsibility funds के लिए, क्योंकि सरकार का जो इनकम है, हमारा वेलफेयर डेवलपमेंट, इसी में हम लोग वो गोल गोल चक्कर में हम घूमते जा रहे हैं. तो इसके लिए कुछ नया रास्ता ढूंढना है. We'll find out a way to address this issue. My name is Sonam. I'm a mother of 2. Why I'm mentioning that specifically is trying to educate them in one of the better schools, private schools in the city is bleeding me dry. I want to understand a very simple short question. Anything in the pipeline to regulate the private school fees? It is there, but it is not that easy to streamline this. Why? Because they are powerful personalities and they are saying that we are not forcing to anyone to join in our school. Voluntarily, who can pay this fees, they are coming and joining. Why government is involving this system? So the counterpart, I wanted to improve my government education system. If people started to join in government schools, if we have improved our infrastructure and quality of education, then I can address. Anyway, that system is there, Supreme Court guidelines are there. We are going to address this issue, but it is not that easy, but I'll try my best. Thank you so much. It was a fantastic evening. My name is Charulata. और मेरे 2 full-time roles हैं, actually 3. I'm also mother to a teenager. So I'm with Accenture and I'm a full-time animal rescuer. पूरी शाम हमने ये चर्चा की जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ की अर्बनाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर लिविंग इन दिस सिटी. पर साथ ही साथ यहाँ पे इन हैदराबाद व्हाट आई हैव सीन इज इट्स सो रिच इन कल्चर. आपने भी बात की जॉइंट फैमिली की, अच्छा लगा सुनकर. और ये वैल्यूज़ जो हैं इतने अर्बनाइजेशन में, हमारी जो रिच कल्चर है यहाँ पे, इन दोनों का संतुलन हम कैसे रख सकते हैं? कोई मतलब, आर यू थिंकिंग अबाउट कीपिंग द कल्चर ऑल्सो राइट एट द पीक एंड क्रिएटिंग द अवेयरनेस? क्योंकि
कल्चर की जब बात आती है, हेरिटेज की बात आती है, तो लोग नॉर्थ, वेस्ट या ईस्ट की चर्चा करते हैं, पर यहाँ की कल्चर बहुत रिच है, तो इन दोनों का बैलेंस कैसे रखें? ये हैदराबाद तेलंगाना ऐसा हो गया, मिनी वर्ल्ड हो गए, तो किसी कल्चर के लिए हम बोलना इतना आसान नहीं है कि हर जगह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप ढूंढो, बंगाल के लोग मिलेंगे, केरला के लोग मिलेंगे, बैंगलोर के, मतलब सब सारे शहर से आ रहे हैं। लोकल कल्चर हैदराबाद में डाइल्यूट हो गए कि लोकल के जनता कम हो गए, बाहर के जनता ज़्यादा हो गए। एंड नाउ हेरिटेज एंड कल्चर के लिए हम वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन से स्टेट गवर्नमेंट हैज डन MOU विथ दैट WMF, सो वी आर प्लानिंग फॉर दैट। दिस इज वेरी इनिशियल स्टेज, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारे, सॉल्यूशंस बहुत कम है, पैसे और बहुत कम है। पैसे रहा तो सब कुछ कर सकता हूँ, तो पहले मैं पैसे कमाने में ध्यान दे रहा हूँ। पैसे कमाने के बाद अब जो भी समस्या बोल रहे हैं उसको एड्रेस करना आसान है। पैसे ऐसे वाले बोले तो बहुत सारे लोग सुनेंगे, सरकार भी कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग इससे पैरेलल द कल्चर, वेलफेयर, डेवलपमेंट, बिहेवियरल चेंजेस, मतलब अपना सोच, अपना बिहेवियर में भी कुछ करेक्शन लेकर आने का बहुत जरूरी है। पहले वो उधार चुका रहे हैं, उसके लिए पैसे कमाने हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। आपने एक बार बोला कि अभी आइडियोलॉजी क्या, अभी तो स्विगी होम डिलीवरी सिस्टम हो गया है। अभी ये देयर इज अ प्रॉब्लम, एवरीबडी इज डूइंग कॉम्पिटिटिव डिलीवरी नाउ। शेखर जी, मैं पॉलिटिक्स को मैं डिफाइन किया, 2 तरीका से डिफाइन किया। जो पहले आज़ादी मिले थे तब पॉलिटिक्स था टेस्ट मैच जैसे, सुकून से 5 दिन खेलो, नाइट वॉचमैन कौन किया, रात को बैठकर चर्चा करो अगले दिन क्या खेलना, आउट होना नहीं होना, ऐसा फॉर्मेट हो गए। उसके बाद थोड़ा बदल के वनडे मैचेस आ गए। पॉलिटिक्स में 1970 इमरजेंसी के बाद पॉलिटिकल सिस्टम पूरा बदल कर वनडे मैच जैसा बन गए, मतलब 50 ओवर में आप प्लानिंग कर लो। 2000 के बाद हमारे जैसे लोग आने के बाद 2020 हो गए पॉलिटिक्स। तो सचिन, सुनील गावस्कर लीजेंड इन टेस्ट मैचेस, सचिन तेंदुलकर लीजेंड इन वनडे मैचेस। आजकल तो T20, आजकल तो 2020 हार्दिक पांड्या जो टेस्ट मैच खेलता नहीं। तो कुछ लोग, तो पॉलिटिक्स में भी ये फिलॉसफी बदलते गए। टेस्ट मैच प्लेयर को अभी 2020 में आप खेलने के लिए मौका दिए तो कुछ करने वाले नहीं। पॉलिटिक्स में भी ये सिस्टम बदल गए। विराट कोहली तरह की पॉलिटिक्स हो गया, मतलब हिट आउट और गेट आउट। अगर हार रहे जीत दो, ये दिस इज नंबर 1। नंबर 2, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। जब क्लोज्ड इकोनॉमी था, हमारा पॉलिसीज, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा पूरा सिस्टम अलग थे। ओपन इकोनॉमी होने के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद आइडियालॉजी लाइब्रेरी को चला गए। अगर आइडियालॉजी पढ़ना है तो जाके लाइब्रेरी में देखो। अगर चुनाव जीतना है तो स्विगी जैसा 2 मिनट में कौन डिलीवरी दे रहा है उनको वोट दे रहे हैं। आप लोग इतने सारे लोग पूछा आप कौन सी आइडियालॉजी से सरकार बनाए, कोई पूछा इतने सवालों में? आप कितने टाइम में आप कौन से काम करेगा, आप रोड सड़क कब बनाएंगे, नाला कब बनाएंगे, नौकरी कब देंगे? सो दे आर एक्सपेक्टिंग डिलीवरी। स्विगी ऑल्सो यू आर एक्सपेक्टिंग विद इन अ मिनट डिलीवरी। सो स्विगी पॉलिटिक्स जैसा हो गया, इसीलिए आइडियालॉजी लाइब्रेरी में चले गए, स्विगी पॉलिटिक्स आ गए। तो अभी डिलीवरी करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये मैं थोड़ा आइडियालॉजी से लेकर अब स्विगी में आ गया, मैं कंफ्यूज हो गए। पर स्विगी, जोमेटो, जेप्टो सब हम कोई किसी को एंडोर्स नहीं करते हैं। नहीं मतलब प्लीज गो अहेड। So, my name is Tanay. I'm an architect and a builder. And after architecture, since I had the opportunity to get into the building industry, I wanted to make a change. I wanted to build green buildings and give back something that I've learned in architecture. But the problem is we don't have any incentives as builders to go ahead and do something different, something green. So also not only us, sir, even the suppliers who are doing green infrastructure for us, like the new tech, the new technology, the new startups are doing green infrastructure. They don't have any incentives in Hyderabad. So we are not able to cater to the additional costs that are there that come with green infrastructure because we have to compete with other developers in the area. So this is something that if you could please look into, it will be really helpful.
Definitely now we have adopted a Build Now app where you can put your opinion also, including your building plans. So definitely we will give even facade also, design also, which is very similar areas. Some of हर बिल्डिंग अलग अलग जगह में अलग अलग तरीका के जो बना रहे वो अलग अलग है. अभी हम लोग सोच रहे इट्स ए वेरी इनिशियल स्टेज. इंसेंटिव्स देने के जगह में अभी सरकार तैयार नहीं हुआ है. लेने में अभी सरकार है, अभी आने वाले दिनों में देने के लिए हम सोचेंगे. So, but in the interest But of we will encourage your idea. Ideas are most welcome. अगर ऐसा कुछ रहा तो हमारे system is there anyway. Chief Secretary is there, he is noting important points. Definitely my system will connect you and will take your suggestions. Definitely we will try to implement your suggestions. Thank you. Good evening, Shekhar ji. Good evening, CM Garu. I'm Dr. Soumya Reddy, pulmonologist. So my question for today is, what is the government planning for the healthcare sector? And what is your take on the quackery which should be abolished as per our thing? Because it's causing a lot of health devastation. Hyderabad is the capital of hospitals. Every corner there is But from the government sector, even the underprivileged, they should walk into the government sector who are walking into a private sector. I work for a private hospital. They come into the private sector spending so much. So I think we can improvise. Already government has given Rajiv Arogyasri, each individual is we are paying 10 lakh rupees per annum. So this is one type of support, and now we have started construct specialized hospitals. So one is coming in LB Nagar, 1,000 bedded. Warangal is going to come up with a 2,000 bedded. Now I've initiated Usmania Hospital to shift 3,000 bedded hospital with 3,000 crores. And Eragada, Albal, all these areas we are going to construct we are constructing in big way, and we are going to attach these Arogyasri schemes for that. So all these days we are giving Arogyasri schemes and CM relief fund to private hospitals. Till now we have not given anything to government hospitals. Government hospitals, doctors are not getting anything. So we are spending thousands of crores on construction capital expenditure. We are not giving single rupee for their maintenance. So now I have started to divide it into maintenance, something service. So doctors are in charge of hospital maintenance. Being a senior doctor, pulmonologist, or he has studied in US and everything, is coming and is sitting to attend the attender, floor clean boy. How come he is going to address all those people? So I have told my department, maintenance from something from service. Doctor has to do his own job, not doing this floor cleaning, canteen maintenance, other maintenances. So now I have told my system, these two are two different verticals. We wanted to appoint a housekeeping system for this maintenance, and the doctors top to bottom, they have to do only service to people. The biggest problem is in government sector, the maintenance. We are not spending zero. I will tell you one example. Last year I have spent for intermediate 968 crores. Out of 968 crores, I have spent 967 crores for salaries. I have spent only 1 crore in maintenance of my entire hundreds of junior colleges. Out of that 1 crore, they have spent only 40 lakhs. So in budget, I am showing 968 crores for my intermediate education. But 967 crores, I am paying only salaries to my staff. So this is where government has failed to address these issues. So definitely we are going to address this issue. We are focusing on that. Particular my interest job is education and health. I am going to focus more and more in education in government sector, health in government sector. Anyway, Hyderabad is up for medical tourism, you know. All big corporate hospitals, even Middle East country, people are coming to Hyderabad. Every year, more than 5 lakh, 6 lakh people are coming for treatment for Hyderabad. So definitely we are going to address this issue. Thank One you. request from my side is abolition of quackery, sir. Yeah, Quackery we have to should be see. abolished. So I have to study and I'll come back. Thank you. Thank you very much. I think this can go on, but we should now
call this evening to a close. Maybe we'll have an encore in the course of time. So thank you very much, Revant. You've been very patient and you've done it all with a big smile, which at the end of a long day, I know, and his day has not yet ended. Chief Minister's day never ends. So thank you. The Print of the Cuff. Presenting partner Kotak Private. Experience partner The Quorum. Beverage partner Doers Experiences.